Hello dear students, I Rajesh Vij. Welcome to all of you in my YouTube channel. Today I am going to start with the same topic, sets. So in previous video we have started chapter first, sets. So this is the second part of the same video. तो उसमें हमने बात की थी what are the sets, how we can represent the set in the two form, that in the set builder method and roster format. In both the formats we have discussed how we can write the sets. Now we will discuss today about the type of sets. The first type is my empty set. तो what is the empty set? Empty set के मतलब से समझ में आ रहा है कि the set is empty. Set is empty मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. तो definition is very clear. A set which does not contain any element is called an empty set or the null set or the void set. इसे हम empty set भी कहते हैं, null set and as well as the void set. तो we can say anywhere. So this how can represent? This empty set can be represented by the symbol phi. This symbol can be written as phi or this curly bracket. This curly bracket is empty. You can see there is no element in this bracket. So this set is called the empty set. So one example I am taking with you, that A is a set. How it is defined? X is such that X is lying between 1 and 2. X lying between 1 and 2, where X is a natural number and we know that there is no natural number lying between 1 and 2. 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता, बिकॉज यहाँ पर हमें प्रॉपर डिफाइंड है x इज अ नेचुरल नंबर. 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन हमें x की कौन सी वैल्यू लेनी जो 1 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो. तो देयर इज नो नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 1 and. So you have seen in this example there is no element in the set A, so we can say this is a null set, this is a void set, this is an empty set, because there is no natural number lying between 1 and 2. So this is another example I have taken here. This is B is another set and it is defined as x is such that x square minus 2 equals to 0. x square minus 2 equals to 0. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करके वी विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ एक्स. दिस इज एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट टू एंड प्लस रूट टू. दीज टू वैल्यूज वी विल गेट एंड it is given that what is x, the property of x is given, x is a rational number, but under root 2 जो हमें मिलेगा माइनस अंडर रूट 2 मिलेगा, both are irrational number, not a rational number. So what happened? This is also an empty set, so having no rational roots, so this is a empty set. So from these two examples it is clear that in which there is no element, in which set no element, so this is called a empty set, and this empty set is denoted by phi, or this is empty set. This curly bracket में we will not write any element. Now the next one, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. तो फाइनाइट के नंबर से हमें पता ही लग गया व्हाट इज द मीन ऑफ फाइनाइट. हैविंग द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट मींस हैविंग 1 2 3 एलिमेंट्स, 4 10 100 लाइक दिस. तो अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट. मतलब या तो एम्प्टी हो, मतलब कोई एलिमेंट ना हो तो वो भी तो फाइनाइट ही हुआ, या उसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे एक एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, 10 एलिमेंट हो, 100 हो. So these are called the finite, otherwise the set is called infinite set. So you have seen this example. Let W, हमने किसी सेट को लेट किया, W be a set of the days of the week. W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Days of the week. We know that there are 7 days in a week. So इसका मतलब हमें पता है W में कौन कौन से डेज होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. So this W is a finite set because there are only 7 days in a week. Now the next one, this is S. We have taken another
सेट एंड इट इज डिफाइंड एट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0। अगर हम इसके सेट निकालें, इसको हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पर एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। तो टू एलिमेंट्स वी हैव, सो दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल। तो सी हियर आई हैव टेकन 4 एग्जाम्पल्स हियर एंड वी हैव टू check which one is the finite and which one is the infinite। तो see the first one, x हमें डिफाइन कैसे है, x is such that x equals to natural number, मतलब x की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर आ रही है एंड इट इज गिवन x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x माइनस 1 x माइनस 2 को 0 के इक्वल करें तो फ्रॉम दिस फर्स्ट वन x माइनस 1 0 के इक्वल हो गया एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 आ गई और फ्रॉम हियर x की वैल्यू 2 आ गई। तो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, वी हैव गिवन सेट। अब सेट जो हम फर्स्ट लिस्ट किया था उसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद वी हैव टू एलिमेंट्स 1 एंड 2, सो इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज हैविंग ओनली टू एलिमेंट्स। व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट, दैट x बिलोंग्स टू x सच that is x belongs to the natural number, x is such that x belongs to the natural number, x natural number and x square equals to 4। अगर हम x square equals to 4 को सिंप्लीफाई करें एंड x square हमारे पास कौन कौन सी आएगी, +2 एंड -2 आएगी, बट वी विल टेक ओनली नेचुरल नंबर। इसका मतलब x की वैल्यू 2 लेंगे और x की वैल्यू 2 लेंगे तो व्हाट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सो दिस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। The sets which having only one element, these are also called the singleton sets। तो इस सेट को आप सिंगलटन सेट भी कह सकते हो बिकॉज इट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट। तो n व्हाट इज x, फिर से हमारे पास x नेचुरल नंबर है और x इज अ प्राइम नंबर और वी नो दैट नेचुरल नंबर एंडलेस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, उसमें जो प्राइम नंबर होंगे वो भी इनफाइनाइट ही होंगे। सो द गिवन सेट इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड सिंस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज फाइनाइट, दिस इज infinite, so the prime numbers are also infinite, hence this given set is infinite set। and what about the fourth option, the fourth question, fourth part के बारे में हम डिस्कस करें, x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जबकि x हमारा ऑड नंबर है और नेचुरल नंबर में हमारे पास इनफाइनाइट ऑड नंबर्स ही होंगे। तो so we can say that this set is infinite। so from these four examples it is clear that which set is a finite set, which set is a infinite set। so you have clear this example। now we move to the next topic, that is equal sets। अब equal sets का मतलब समझ में आ गया, अगर दो सेट ऐसे हैं हमारे पास having equal elements then these are said to be called equal। तो I have taken two sets A and B here। अब ये A और B सेट इक्वल कब होंगे, two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements। मतलब जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में होने चाहिए, then they are called equal sets और उनको रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे, A is equals to B, otherwise the set are said to be unequal and we write A is not equal to B। तो I have taken one example here, A हमारे पास A E I O U, हमारे पास कोई सेट A है उसके एलिमेंट A E I O U हैं एंड B हमने कोई सेट लिया, अदर सेट हमने लिया x इज सच दैट x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास वॉवल कौन कौन से होंगे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें वी विल गेट A E I O U ही आएंगे, A E I O U ही आएंगे और तो कुछ नहीं आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, A और B में एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, सेम आ गए हैं। अगर सेम आ गए हैं thus we can say that these two sets are equal sets। now the next example, which of the following pairs of sets are equal। now I have taken two example और हमें चेक करना है which are equal and we have to justify answer। x एक सेट ले लिया, x is the set of the letters alloy के हमारे पास लेटर A L L O Y एंड B सेट दूसरा ले लिया द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। अगर हम इस फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम x के सेट को बनाएं इन द रोस्टर फॉर्म में x क्या बनेगा, x बनेगा दैट इज L A L O Y, इसके सेट बन गए क्योंकि इसमें L दोबारा रिपीट हो रहा है। वी डोंट नीड टू रिपीट द एलिमेंट, वी हैव टू राइट द एलिमेंट वंस। and similarly in the B set we will take L O Y and A। तो you can see here x और B
दोनों के पास सेम एलिमेंट है, L इज प्रेजेंट इन X एज वेल एज इन B, O is present X as well as in P. Similarly, Y and A both are present in X as well as in B. Then we can say this set X and Y are equal sets. Now the next part, you can see the second part, A equals to, how it is defined? N is such that N belongs to the Z. Z is what? Set of integers. Z is what? Set of integers and n square is less than or equal to 4. अगर हम यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो what will be the integers we will get? We will get -2, -1, 0, 1 and 2 because n square की वैल्यू क्या रही हमारे पास? n square less than और इक्वल टू 4 आ रहा है. सो वैल्यू ऑफ a की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 ही आएगी हमारे पास. यू कैन सी एन स्क्वायर लेस भी है, इक्वल भी है. इक्वल पर तो हमें -2 + 2 मिल गया और लेस के लिए हमें -1 मिलेगा, 1 मिलेगा एंड 0 एज वेल एज वी विल गेट. फॉर द बी यू कैन सी फॉर द बी सेट x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड x स्क्वायर -3x + 2 = 0. बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर इसे हम करते हैं तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे. फैक्टर्स आर x -1 एंड x -2. अब इसके दो फैक्टर अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना ले x -1 x -2 तो हमें x -1 से x के लिए 1 आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है. तो यू कैन सी हियर 1 and 2 only present in B but in A having 5 elements -2, -1, 0 and 1, 2. यू कैन सी 0 तो A को बिलोंग कर रहा है लेकिन 0 B को बिलोंग नहीं कर रहा. लेकिन इक्वल सेट तभी होते हैं जब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हो, B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट हो, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट हैविंग. So we can say that A and B are not equal sets. Next one, subsets. Now what about subset? Subset. Subset का मतलब क्या होगा? कोई हमारे पास अगर एक सेट गिवन है, हमारे पास कोई सेट A गिवन है, उसके कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट को लेकर हम एक नया सेट बना दें तो उस टाइप के सेट को हम क्या कहते हैं? सबसेट्स कहते हैं. तो सी द डेफिनेशन, A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. मतलब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होने चाहिए. देन वी कैन से दैट A क्या है? B का सबसेट है. मतलब A में जो भी एलिमेंट है वो कहाँ से लिए गए हैं? सेट B से लेके बनाया गया. मतलब सेट A को कहाँ से ड्राइव किया गया है? B से कुछ एलिमेंट या सारे के सारे एलिमेंट लेके नया सेट बनाया गया. अगर हम इस फिगर को ध्यान दें तो लेट अस सपोज ये हमारे पास B कोई सेट है. अब इसमें हमने क्या किया? एक सेट A लिया, लेकिन सेट A हमने किस तरह से लिया कि B के अंदर के ही एलिमेंट कुछ हमने ले लिए, इसमें यूज़ कर लिए. तो आप देख रहे हो A कहाँ लाई कर रहा है? A B के अंदर ही लाई कर रहा है. इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में भी प्रेजेंट हैं. सो इसका मतलब A क्या है? वो B का सबसेट है. अगर मैथमेटिकली इसको अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B. A इज, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस सिंबल रिप्रेजेंट द A इज अ सबसेट ऑफ B इफ अगर A इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल A एंड A इज एलिमेंट ऑफ B ऑल्सो. मतलब जो एलिमेंट A में होगा वही एलिमेंट B में होना चाहिए. देन वी कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B. तो इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं. इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, A is a subset of B if A is an element of A, this implies that A is also element of B. यही चीज़ हमने ऊपर पढ़ी अभी और यही हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि A B का सबसेट है. if A is element of A, this implies that A is element of B also. मतलब जो भी एलिमेंट A में प्रेजेंट है वो B में भी होने चाहिए, तभी वो जो कैपिटल A सेट है हमारा वो B का सबसेट होगा. If we write the above statement as A is a subset of B if A is an element of A, implies that A is also an element of B. If A is not a subset of B, अगर A B का subset नहीं है, then we are using this symbol. हमने subset का symbol लगाया and we will like cross it like this. This is A is not a subset of B. Next. So this is a very important
for subsets that every set A is a subset of itself, मतलब कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट है, इट मीन्स A is a subset of itself. एंड फाइव में पता है फाइव जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. अगर हम सेट ए लेते हैं तो फाइव ए का भी सबसेट है, हम बी कोई सेट ले रहे हैं तो बी का भी सबसेट, मतलब फाइव इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट. नाउ थर्ड, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, मतलब कोई भी सेट दिया हुआ है उसके टोटल कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है 2 टू पावर n. अब 2 टू पावर n से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपके लिए लिया, यू कैन सी दिस एग्जांपल, फाइंड द टोटल सबसेट्स ऑफ ए 1 2 3 1 2 3. अब 1 2 3 हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, हम इस सेट ए के टोटल सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं. तो सबसेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके कुछ या सारे के सारे एलिमेंट लेकर हम क्या करते हैं, नए एलिमेंट्स बनाते हैं, वो भी क्या होंगे, हमारे सबसेट्स बन जाएंगे. और ईच सबसेट इज अ सेट, जितने भी सबसेट बनेंगे वो एक सेट ही होंगे. तो सी हियर द सबसेट्स ऑफ ए आर गिवन बाय 5. 5 इज आल्सो अ सेट. 1 को करली ब्रैकेट में डाल दिया, करली ब्रैकेट में डाल दिया, इसका मतलब 1 इज अ सेट, सिंगलटन सेट. 2 इज अ सिंगलटन सेट. 3 इज अ सिंगलटन सेट. एंड यहाँ पर मैंने सिंगल एलिमेंट लिए थे, अब हम इसके डबल एलिमेंट ले सकते हैं. 1 2 लिया, 1 3 लिया. यू कैन सी 1 2 और 2 1 दोनों सेम है, तो ऑर्डर का यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा. 1 2 लिख दो या 2 1 लिख दो, इट डजंट मैटर. 1 3 लिख दिया, 3 1 लिख दिया, एंड देन 2 3 एंड 1 2 3. दीज आर, पहले हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिया, 5 लिया, दैन सिंगल एलिमेंट लिया, फिर डबल एलिमेंट लिया, फिर उसके बाद हमने ट्रिपल एलिमेंट लिए. तो यू कैन सी दीज आर द सम अरेंजमेंट्स बाय विच वी हैव गॉट ऑल द सबसेट्स. इस तरह से अरेंज करके हम सारे सबसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. 2 टू पावर n की बात मैं कर रहा था कि कितने सबसेट्स बनेंगे. अब यहाँ पे देखो आप 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू पावर 3 मतलब 2 टू पावर 3 का मतलब हो गया 8 सबसेट्स बनने चाहिए इस सेट के ए के. तो यू कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स ही यहाँ पर बने हैं. टोटल पॉसिबल सबसेट्स आर 8 फॉर दिस सेट ए. तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल और यूजफुल फार्मूला आपके पास है, दिस इज 2 टू पावर एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैन बी फाइंड बाय दिस फार्मूला. नेक्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन हियर, दिस इज कंसीडर द सेट 5 A B and C. 4 sets are given. Insert, we have to insert this symbol. This is a subset or this is not a subset of the. So you can see the 3 points I have taken here. 5 और 5 अभी हमने पढ़ा था, 5 इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट. इसका मतलब 5 जो है वो B का क्या होगा, सबसेट होगा. सो 5 इज अ सबसेट ऑफ B एज 5 इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट. नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड A एंड B, सेकंड पार्ट, A B का सबसेट होगा या नहीं होगा. अब हम A के एलिमेंट को चेक करते हैं. A के एलिमेंट 1 3 है और B के एलिमेंट 1 5 9 है, जबकि हम देख रहे हैं कि A का जो एलिमेंट 1 तो इसमें प्रेजेंट है लेकिन 3 इज नॉट प्रेजेंट इन B. तो यू कैन सी A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B एज 3 इज द एलिमेंट ऑफ A बट 3 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ B, वो उसका एलिमेंट नहीं है. तो सिमिलरली वी कैन आस्क फॉर द third part, that is A is a subset of C or not, because we can see here A के पास 1 and 3 elements हैं and B के पास 1 3 5 7 9 है. You can see all elements of A also lies in C, so A is a subset of C. So hence this topic is clear to all of you, how we can identify whether this first one is a subset of other one or not. Now the next part is intervals. We will discuss about the intervals as a subset of R. What is R? R for real numbers. अब real numbers के हमारे पास interval हैं. अभी जैसे हमने curly bracket पढ़ा, तो curly bracket हमारे यूज़ होता है इन रोस्टर फॉर्म में. जब हम यूज़ करते थे इन एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रोस्टर फॉर्म में curly bracket लगा देते हैं. देन जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके बीच में वी आर यूजिंग कॉमा. बट व्हाट अबाउट द रियल नंबर्स. अगर रियल नंबर की बात करें देन वी हैव डिफरेंट intervals. The different intervals we will let, that is A and B are two real numbers and A is less than B. Then Y, हमने एक रियल नंबर लिया Y is a real number
एंड y की वैल्यू जो है वो a और b के बीच में है. यू कैन सी y इज ग्रेटर देन a, y इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल. इट इज डिनोटेड बाय a b इन स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने ए बी को लिखा है. ये किसको डिनोट कर रहे हैं? ओपन इंटरवल को डिनोट कर रहे हैं. दिस इज अ ओपन इंटरवल फ्रॉम बोथ साइड. ए से भी ओपन है, बी से भी ओपन है. अब इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ? यू कैन अंडरस्टूड दिस. ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल. मतलब ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट तो इसमें बिलोंग करेंगे, बट ए और बी जो हैं themselves डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल. मतलब ए और बी इसको बिलोंग नहीं करेंगे, लेकिन ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे. ओपन इंटरवल में जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, दीज आर नॉट बिलोंगिंग टू द गिवन इंटरवल, बट उसके बीच में जो भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन. अब ये हमारे पास सेकंड इंटरवल आ गया. दिस इज द क्लोज इंटरवल. अब इधर से भी क्लोज है, इधर से भी क्लोज है, तो दोनों तरफ से क्लोज है. इसका मतलब इसमें हमारे पास बोथ ए एज वेल एज बी और उसके बीच के एलिमेंट जो होंगे सारे के सारे क्या होंगे? वो लाई करेंगे. thus अगर हम कोई x एलिमेंट लेते हैं तो x की वैल्यू फ्रॉम a टू b हो जाएगी. इट इज ये a और b के बीच की वैल्यूज थी, यहाँ पर a से लेके b तक की सारी वैल्यूज होंगी. मतलब a एंड b आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल. दिस इज कॉल्ड द क्लोज ब्रैकेट. And other intervals we also have, that is this is closed and one sided closed and one sided open interval. You can see here तो A की तरफ ये closed है और B की तरफ ये open interval है. So इसका मतलब क्या हुआ? in this interval A तो इसमें belong कर रहा है, लेकिन B इसको belong नहीं कर रहा है. इसका मतलब X को हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं. X is such that x is greater than or equal to a but less than b. It is an open interval from a to b. तो including a but excluding b. मतलब a को तो include कर रहा है लेकिन b को include नहीं कर रहा है ये इंटरवल. तो similarly we have the another. It is open from a side and close from side b. तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हमारे excluding a but including b. ए को एक्सक्लूड कर रहा है लेकिन बी इंक्लूड कर रहा है. तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ इंटरवल. तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. अब इस इंटरवल को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ऑन दिस नंबर लाइन. यू कैन सी आई हैव टेकन दिस फिगर. तो दिस इज फॉर ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल ए एंड बी, इट मीन्स ए एंड बी आर नॉट इन दिस रेंज. इस रेंज में जो होगा ए और बी ब्रैकेट में हमारे पास ओपन इंटरवल लगी, इसलिए ए और बी इसमें लाई नहीं करेगा. इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बनाया? सर्कल बना दिया ओनली. और सर्कल को हमने अंदर से डार्क नहीं किया है. और ये लाइन हमारी जो डार्क लाइन है ये शो कर रही है क्या? दिस इज द ऑल अदर पॉइंट्स एक्सेप्ट ए एंड बी. फॉर दिस क्लोज इंटरवल यू कैन सी यहाँ भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज है. इसमें बोथ ए एंड बी इट इज इंक्लूड कर रही है. अगर इंक्लूड कर रही है तो हमने सर्कल बनाया, डार्क कर दिया. इट मीन्स इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग ए एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडिंग बी एंड द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी ऑल्सो इंक्लूडिंग. तो सिमिलरली दिस इज क्लोज फ्रॉम दिस साइड एंड ओपन फ्रॉम दिस साइड. तो यू कैन सी A is included in this interval but B excluded and the other points are included in this interval. And similarly here we can explain. I have taken one example here, that is set x is such that x belongs to the real number. जबकि हमको x कैसे डिफाइंड है? -5 से ग्रेटर है लेकिन 7 से ये वैल्यू बड़ी है. x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू द रियल नंबर. अब रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है. अगर ये इंटीजर को होता, अगर ये नेचुरल नंबर को होता, होल नंबर को होता, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते और जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके बीच में कॉमा लगा. लेकिन यहाँ पर -5 to 7 देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन देम. सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट? वी कैन यूज दीज इंटरवल्स. these 4 type of intervals we can use here. You can see here x में की वैल्यू -5 से बड़ी है, -5 को एक्सक्लूड कर रही है. सो वी हैव यूज्ड हियर दैट ओपन इंटरवल साइन एंड ये 7 को इंक्लूड कर रही है. सो वी हैव टेकन क्लोज्ड इंटरवल हियर.
तो सिमिलरली you can see -3 to 5, -3 is included in this interval but 5 is not included. अब इसको हमने सेट बिल्डर, पहले हमने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमें उसको इस फॉर्म में लिखा, अब हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का भी तरीका सेम ही है। हमने कहा x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, x रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, जबकि यहाँ पर x जो है -3 को इंक्लूड तो कर रहा है लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा, वो एक्सक्लूड कर रहा है। सो वी हैव रिटन ओनली द लेस देन साइन। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज पावर सेट। तो पावर सेट की बात करें अगर हम, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, मतलब हम अगर सेट ए कोई हमारे पास है और उसके सारे जितने भी सबसेट्स हैं हम बना लें और उन सबसेट्स को बना के हम उन सबसेट्स को एक नए सेट में डाल दें, नए सेट में रख दें, देन दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन हम रीड कर सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स of a set A is called the power set of A. It is denoted by PA. पावर सेट को डिनोट करने का फॉर्मूला PA, A हमारे पास सेट है एंड P पावर सेट ऑफ A. इन PA every element is a set. अब इसमें हमारे पास जो PA है, PA के जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक सेट होंगे। तो दिस इज एग्जाम्पल आई हैव टेकन फॉर यू, दैट इज A is a set having element 1 and 2. अब 1 2 है तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे हमें पता है, इसके सबसेट्स हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 2 हो गया, तो 4 सबसेट्स भी है। अगर इन 4 सबसेट्स को हम एक सेट में इंक्लूड कर दे, एक सेट में डाल दे, एक सेट में रख दिया जाए, यू कैन सी 5 इज अ सेट, 1 इज अ सेट, 2 इज अ सेट, 1 2 भी एक सेट ही है। हमने उन सब को क्या कर दिया, एक अलग सेट में बंद कर दिया, रख दिया। तो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। एंड वी आल्सो नोट दैट n डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पावर सेट। n किसको डिनोट कर रहा है, पावर सेट के कितने एलिमेंट हैं, पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे, जितने सबसेट्स बनेंगे। और सबसेट्स का फार्मूला अभी आपने पढ़ा था 2 टू पावर n, तो हमने यहाँ पर यही फार्मूला यूज़ किया 2 टू पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट यहाँ पर हैं, 2 टू पावर 2 हमने यूज़ किया। सो टोटल सबसेट्स हमारे पास 4 बनेंगे, जितने हमारे पास सबसेट्स बनेंगे उतने ही एलिमेंट किस में होंगे, पावर सेट में होंगे। तो इन जनरल इफ ए इज अ सेट विद एलिमेंट, ए में कितने एलिमेंट हैं, एन ए का मतलब दिस इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, ए में कितने एलिमेंट हैं, ए के पास m एलिमेंट हैं, देन वी कैन शो दैट उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू पावर m। तो ये वाला फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने डिस्कस कर लिया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेंगे वही हमारे पावर सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट the type of sets, empty sets, infinite sets, finite sets, singleton sets, subsets, power sets and many more things we have discussed. So definitely you like this video, so don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the like button. So thank you, have a nice day students.